14 July 2023 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Chandrayaan is India's first lunar exploration October 22, 2008 by the ISRO. Chandrayaan 2, the second lunar exploration mission, was launched on July 22, 2019. Exploration mission was launched on July 22, 2019. Chandrayaan 3 is primarily a follow-up mission to Chandrayaan 2 with the goal of soft landing a rover on a moon surface. It aims to learn from the experience and challenges faced during the Chandrayaan 2 mission to ensure a successful landing this time. The main goal of Chandrayaan 3 is to search for water ice on the moon. Chandrayaan 3 will also study the moon's geology, history and environment. Chandrayaan 3 is a major milestone for India's space program. It will help India to become a leading player in a global space exploration. Big success for all Indians that is Chandrayaan 3 successfully touched down on the south pole of the moon surface. At 6:04 p.m. on Wednesday 23rd August 2023, India made history by becoming the first country to reach the lunar south pole. Chandrayaan 3 serves as a great science of inspiration for future generations like us as future scientists, engineers and researchers. We have the potential to make significant contribution to space missions like Chandrayaan 3. Let us be inspired by our space scientists and take this opportunity to learn, explore and contribute to the world of science and technology. नेशनल स्पेस डे। आज हम यहाँ 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने का खास दिन है। पिछले वर्ष सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को विशेष रूप से भारत के अद्वितीय अंतरिक्ष मिशनों और उनकी सफलता को उजागर करने के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष का विषय है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता इस दिन को और भी विशेष बनाती है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह उपलब्धि हमें गर्वित करती है कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारत ने करके इसके अलावा देश बनकर एक नई कहानी लिखी है। इस अवसर पर हमें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझने और युवाओं को इसके प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसरो ने कई अन्य मिशन भी लॉन्च किए, जैसे कि आदित्य L1 मिशन जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय और ऊर्जा समर्पित की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस एक ऐतिहासिक उपलब्धि का स्मरण करता है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। रोवर ने 23 अगस्त 2023 को शाम 6:30 पर चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। इसे सितंबर में निष्क्रिय कर दिया गया। थैंक यू। I'm Ritu from 10A. Today I'm here for a speech about Science National Space Day. Today we have come together to celebrate this National Space Day, a day dedicated to our honorable and national achievements in space exploration. On this day, we commemorate the historic success of Chandrayaan 3 mission and incredible feat of this milestone is a testament of the hard work and brilliance of Indian Space Research Organization ISRO and its dedicated scientists. National Space Day is not only a celebration for our scientists, rememberable achievements, but also a reminder of the endless possibilities that lie ahead. As we reflect on this significant accomplishment, we recognize the profound impact of space exploration on our
universe. This day also serves as a call to the action for next generation to explore scientists and innovation to continue the quest for knowledge. As we look to the stars, we are reminded to boundless possibilities that await us. Let's celebrate our achievement and continue to support the pursuit of knowledge and exploration. Thank you. Have a nice day. भारत ने नया इतिहास बना दिया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिया है। आज वो भारत ने कर दिया है। भारत आज 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। इस दिन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाना है। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला बना देश इसरो की महान उपलब्धि है। इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। इसे बनाने का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। यह विश्व भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। आज देश प्रेम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इन कार्यक्रमों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और आने वाले मिशनों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह न केवल भारत की उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि यह दिवस आने वाले समय में नई चुनौतियों को स्वीकार करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों में प्रेरणा देगा। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जिसने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया और 40 दिन के उपरांत 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव की सतह पर सफलतापूर्वक उतर पाया। इसके उपलक्ष्य में भारत के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और चीन, ये 3 देश हैं जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसी अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने की कोशिश की है, लेकिन भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष यान को उतारने में सफल रहा है। Today, 23 August marks a historic movement in India's space journey. Our first National Space Day. Exactly 1 year ago, in 23 August 2023, India had successfully soft landed on the lunar south pole region. This achievement made India the first country to reach this explored region, and India became the 4th country to land on the moon after the USA, Russia, and China. To commemorate this year, every year, August 23 has been declared as the National Space Day by Government of India. Today we celebrate this groundbreaking achievement and tireless efforts of our scientists, engineers and researchers of ISRO for National Space Day 2024. The theme selected for National Space Day 2024 is Touching Lives while Touching the Moon, India's Space Saga. We all know that India's space program began in 1969 with the establishment of ISRO. ISRO launched India's first satellite Aryabhat in 1975. Since then, India has made many advancements in space technology. We have launched many satellites, sent probes on the moon, Mars and on the sun. Gaganyaan mission is an ongoing project of ISRO that aims to send astronauts into the space. Their dedication and innovative spirit have taken India to new heights. Let's celebrate this day with pride, inspiration and a commitment to continued exploration and innovation. We are proud of our space heritage and excited for the future of space exploration in India. Thank you very much. Happy National. नमस्कार। आज मैं दीपिका 7th A कक्षा की छात्रा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आप सभी को भाषण देना चाहती हूँ। अंतरिक्ष पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष पर अंतरिक्ष यान भेजने वाले
भारतीय संस्था इसरो और अमेरिका से भेजने वाले अमेरिकन संस्था नासा है। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में पानी की भी खोज की। आप सभी को 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। की छात्रा मुस्कान। आज मैं आप सभी के सामने अंतरिक्ष दिवस पर भाषण देना चाहती हूँ। आज हम यहाँ 23 अगस्त को मनाए जा रहे पहले अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने का खास दिन है। पिछले वर्ष सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन को विशेष रूप से भारत के अद्वितीय अंतरिक्ष मिशनों और उनकी सफलताओं को उजागर करने के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष का विशेष है चांद को छूते हुए जीवन को छूना। भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो हमारे अंतरिक्ष अवशेषण विशेष बनाती है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती एक साहित्यिक उपलब्धियां थी। यह उपलब्धियां हमें गर्वित करती है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर एक नई कहानी लिखी है। इस अवसर पर हमें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व को समझने और युवाओं को इसके प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह दिन हमारे यह याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को अपने देश की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के उत्सव के रूप में मनाए और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। भी हो रही है, भाषण प्रतियोगिता भी हो रही है, कुछ देर बाद क्विज प्रतियोगिता भी होगी। इस सब के लिए उपवास विद्यालय की साइंस टीम बहुत अग्रणी कार्य कर रही है, बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है। और ये केवल हमारे स्कूल में नहीं हो रहा, पूरे इंडिया में हो रहा है। लेकिन हमारा योगदान महत्वपूर्ण इसलिए रहता है कि आप सभी बहुत बच्चे इसमें मन से पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी आपको काम बोला जाए उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। इस वजह से इस प्रोग्राम को कराने में हमें भी बड़ी खुशी महसूस होती है। जिस तरह से आज पेंटिंग में बच्चे लगे हुए हैं, आज जिस तरह से भाषण प्रतियोगिता हुई है, बहुत ही बढ़िया है। जागरूकता बढ़ेगी, कम से कम ये तो जरूर पता चलेगा कि 1 साल पहले क्या हुआ था। 1 साल पहले चंद्रयान साउथ पोल पे सेफली लैंड हुआ और एक बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि थी भारत के लिए। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला देश, नॉर्थ पोल पे तो कई देश चले गए जिन्होंने लैंड किया है, लेकिन साउथ पोल के ऊपर, क्योंकि साउथ पोल पे अंधेरा रहता है, वहाँ पर क्रेटर है बहुत बड़े बड़े, वहाँ पर पहुँचने वाला भारत पहला देश था। भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप लोगों के बीच में इसलिए शेयर की जा रही है कि आप प्रेरणा लें इससे, आप इसको देखें, समझें और आगे बढ़े, क्योंकि आप देश का भविष्य है। आपके मन में कभी आएगा ख्याल कि भाई हमें इस तरफ जाना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मंजिल दूर नहीं आपके लिए भी, अगर आप इस तरफ कदम बढ़ाएं तो। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ।
बाकी आवाज नहीं। नेक्स्ट टीम बोनस के लिए तैयार रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INSAT? INSAT। और अभिनव गतिविधियां। जी हाँ, अब होगी हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्राप्त होगा एक आकर्षक प्रमाण पत्र। और अब होंगी भाषा शिक्षण एवं विकास हेतु परस्पर संवादात्मक, रोचक और मनोरंजक गतिविधियां। इन गतिविधियों के द्वारा बच्चे